I am Sachin Kumar Tyagi. I am assistant professor in IT department. Today I will discuss design and analysis of algorithms. In this subject, we will discuss red black tree. Red black tree topic is very important for IT students. In this lecture, we will know about what is red black tree, properties of red black tree, rotations functions. In red black tree, we have to need the rotations. And finally, we will discuss most important topic, insert operation in red black tree. First, we will know about what is red black tree. Red black tree is a binary search tree with node color. Either node is red or black. First of all, we should know about binary search tree. In binary search tree, left value is less than from the parent node and right value is greater than from the parent node. We know about the binary search tree. It means minor difference in binary search tree and red black tree. Difference is only color. Here every node contain the color. Node color is either red or black. Red black tree is partial balanced tree. You know very well binary search tree is fully unbalanced tree. If you want to insert 1, 2, 3, 4, 5, 6 in binary search tree, then you will find 1 insert, 2 is greater than 1, so insert right, 3 is insert right, 4 is insert right, 5 insert is right and 6 insert is right. We are seeing that binary search tree is fully unbalanced tree. Red black tree is not a fully unbalanced tree, it is partial balance. Means in red black tree लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपका जस्ट डबल तक का डिफरेंस हो सकता है. यदि लेफ्ट साइड में आपकी डेप्थ 2 जा रही है तो राइट साइड में वो मैक्सिमम डेप्थ आपकी क्या जा सकती है 4. या लेफ्ट साइड में आपकी डेप्थ 2 जा रही है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में कितनी जा सकती है 4. मींस जस्ट डबल तक का डिफरेंस. तो जस्ट डबल तक के डिफरेंस की डेप्थ को हमने क्या कहा है कि रेड ब्लैक ट्री इज पार्शियल बैलेंस्ड ट्री. इन रेड ब्लैक ट्री द कलर ऑफ नोड इज रेड और ब्लैक. It is decided on the basis of properties of red black tree. First, we will know about the red black tree properties. In red black tree, every node is either red or black. Root node is always black. ये ध्यान देने वाली बात है कि रूट हमेशा क्या होगा यहां पर ब्लैक होगा. सेकेंड, एवरी लीफ नोड इज ब्लैक. अभी तक आपने जितने भी ट्री देखे हैं उनमें लीफ नोड कोई ना कोई वैल्यू कंटेन रखता है. बट इन रेड ब्लैक ट्री एवरी लीफ नोड इज नील पॉइंटर. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. सपोज दैट 1, 2, 3, 6. Here 2 and 6 is leaf node. But in red black tree every leaf node is nil pointer. It means 2 and 6 also have leaf node. Leaf node means last node, and here last node contain the nil pointer, means it does not have any value in leaf node. We will understand in next slide. If a node is red, next property is if a node is red then both children are black. ये समझने वाली बात है. यदि आपके रेड ब्लैक ट्री में कोई रेड नोड आता है तो उसके दोनों चाइल्ड आपके क्या होंगे ब्लैक होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट. एवरी पाथ फ्रॉम नोड टू डिसेंडेंट लीफ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स. इट मींस आप किसी रेड ब्लैक ट्री के किसी भी पाथ को फॉलो कीजिए, एवरी पाथ आपका नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स शुड बी सेम. अब ये प्रॉपर्टी वी विल ट्राई टू दिस प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. वी टेक दिस एग्जाम्पल. हेयर 23 इज रूट. एवरी रूट नोड इज ब्लैक. मैंने कहा था कि रूट नोड आपका ब्लैक होगा. 4 इज इंटरनल नोड एंड कंटेन द नील पॉइंटर्स. नील 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 नील. एवरी नोड कंटेन द नील पॉइंटर. नील पॉइंटर का कलर आपका क्या है ब्लैक. क्लियर. द रूट इज ऑलवेज ब्लैक. एवरी लीफ पॉइंटर इज ब्लैक. क्लियर. ये प्रॉपर्टी 2 में क्लियर हुई.
तीसरी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ए नोड रीज रेड बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक। आप ये देखिए यहां पर इस कलर का नोड कलर क्या है, रेड, तो उसके दोनों चाइल्ड क्या आपके ब्लैक। ये आपका कलर नोड है, मीन्स अब यदि ये आपका लास्ट नोड है बट नील पॉइंटर हम दिखाएंगे, नील पॉइंटर के दोनों कलर कैसे हैं आपके ब्लैक, तो मीन्स रेड के दोनों चाइल्ड यहां पर भी क्या हो गया आपके ब्लैक, यहां पर भी ये नोड रेड है और रेड के दोनों चाइल्ड क्या आपके ब्लैक। अभी तक आपने जितने भी ट्री पढ़े हैं तो आपने ट्री की हाइट पढ़ी होगी, बट रेड ब्लैक ट्री में दो टाइप की हाइट होती है, ट्री की हाइट और एक ब्लैक हाइट। यदि मैं ट्री की हाइट की डेप्थ की बात करता हूं, यहां पर नॉर्मल डेप्थ के 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये ट्री की हाइट है। क्लियर? मीन्स यदि मैं यहां पर ब्लैक हाइट की बात करता हूं, ब्लैक हाइट क्या होती है? ब्लैक हाइट होती है कि जिस नोड से भी आप ब्लैक हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो, सपोज दैट आप रूट से ब्लैक हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो, एक्सेप्ट दिस नोड कलर, उस नोड के कलर को आप काउंट नहीं करोगे, किसी भी पाथ पर चले जाइए, एक पाथ पर जितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगे वो उसकी ब्लैक हाइट कहलाएगी। तो इसका यदि सपोज दैट मुझे इसकी ब्लैक हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैंने इस पाथ को फॉलो करता हूं, कलर इज रेड, काउंट नहीं होगा, ओनली कलर काउंट ब्लैक, कलर इज ब्लैक 1, नील 1, 1, 1, 2, तो ब्लैक हाइट इज 2। आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लीजिए, इस पाथ को फॉलो कर लीजिए, 1 एंड रेड है 1 + 1 2, ब्लैक हाइट इज 2। हमने कहा था एवरी पाथ फ्रॉम नोड टू डिसेंडेंट लीफ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लीजिए, नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आपके क्या सेम। अब यदि आप इसकी भी ब्लैक हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो इस नोड की, तो मैंने कहा था एक्सेप्ट दिस नोड, कलर आप काउंट नहीं करोगे, कंसीडर नहीं करोगे, आपने इस पाथ को फॉलो किया, यहां से नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स 1, इधर 1, 1 + 1 2 ब्लैक हाइट, इस पाथ को फॉलो करते हो 1 ब्लैक + 1 ब्लैक 1, 1, 2। यदि इस पाथ को फॉलो करते हो 1 ब्लैक, इधर जाते हो रेड है, काउंट नहीं होगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। नोड पर जो मैंने वैल्यू इंडिकेट करी है, इट इंडिकेट्स द ब्लैक हाइट ऑफ द नोड। मींस नील पॉइंटर की ब्लैक हाइट क्या होनी चाहिए? नील पॉइंटर की ब्लैक हाइट है 0, बिकॉज मैंने कहा था कि जिस नोड की भी आप ब्लैक हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो उस नोड का कलर आपका कंसीडर नहीं होता। मींस ये कंसीडर होगा नहीं और उसके बाद में कोई ब्लैक नोड है नहीं, तो मींस लीफ नोड की हमेशा ब्लैक हाइट क्या होगी आपकी? 0। अब 15 की ब्लैक हाइट, 15 यहां ब्लैक है बट आप 15 की ब्लैक हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो तो 15 का कलर आपका काउंट नहीं होगा। 15 के नीचे जाओ तो देखा 11 रेड है, काउंट नहीं होगा, नील 1 ब्लैक, तो इसकी ब्लैक हाइट 15 की क्या होगी? 1। इधर भी आप चेक करोगे, इधर रेड है, काउंट नहीं होगा, इधर चेक करोगे 1 तो 1, इधर से भी 1। 11 की ब्लैक हाइट क्या होगी? 11 इज रेड, तो आप इसका कलर कंसीडर होगा नहीं, एक नील पॉइंटर है, कलर ब्लैक, तो ब्लैक हाइट हो गई आपकी 1। तो आप देख रहे हो कि कोई भी पाथ आप फॉलो कर लीजिए, नोड टू डिसेंडेंट लीव्स, एवरी नोड कंटेन्स द ब्लैक हाइट इज सेम। आई थिंक यू आप रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज को अब अच्छे ढंग से जान चुके हो। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रोटेशन फंक्शन। इफ वी वांट टू इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन इन रेड ब्लैक ट्री, then we have to need the rotation functions. There are two types of rotations, right rotations and left rotations. Here we try to understand the rotations. Here suppose that it is the tree, y is not x, x के child a, b and c. अब मुझे right rotate करना है in the respect of y. जिस नोड के रेस्पेक्ट में भी आप रोटेशन करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में राइट रोटेशन चाहते हो तो y राइट डायरेक्शन की तरफ तुरंत के तुरंत वहीं से क्या आ जाएगा? रोटेट हो जाएगा नीचे की तरफ, वहीं से रोटेट हो जाएगा जस्ट नीचे की तरफ। मीन्स यदि y को आप जैसे ही नीचे की तरफ लाओगे तो आप ध्यान से समझिए, x कहां जाएगा आपका? ऊपर की साइड जाएगा। x के ऑलरेडी कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं, और x जैसे ऊपर जाएगा तो y भी उसका क्या बन जाएगा? चाइल्ड। तो मीन्स x के 3 चाइल्ड हो नहीं सकते, इसका मतलब x का जो राइट चाइल्ड है वो y का क्या बन जाना चाहिए? लेफ्ट चाइल्ड। मीन्स तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए, x मैंने y के रेस्पेक्ट में राइट रोटेशन किया, y राइट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया, x ऊपर गया। अब y पर जो x का पॉइंट, x जो उसका x का जो b राइट चाइल्ड था वो y का क्या बन गया? लेफ्ट चाइल्ड, और a x का अपना लेफ्ट चाइल्ड है। क्लियर?
सेम यदि मैं एक्स पर लेफ्ट रोटेशन करना चाहता हूं, एक्स पर यदि मैं लेफ्ट रोटेशन करना चाहता हूं, इट मींस अब एक्स लेफ्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, वहीं से ही वाई क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। जब वाई ऊपर जाएगा तो वाई का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एक्स का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। सेम ये ट्री, वाई का लेफ्ट चाइल्ड बी एक्स का क्या बन गया, राइट चाइल्ड। क्लियर। तो रोटेशंस के ड्यूरिंग द रोटेशंस आपके पॉइंटर चेंज हो जाते हैं, पेरेंट आपका चाइल्ड बन जाता है, चाइल्ड आपका क्या बन जाता है, पेरेंट। यहां आपने देखा था वाई पेरेंट था एक्स का, बट आफ्टर राइट रोटेशन आपका एक्स क्या बन गया था, वाई का पेरेंट। और जब मैंने एक्स पर आपका लेफ्ट रोटेशन किया, एक्स आपका चाइल्ड बन गया, वाई का एक्स आपका चाइल्ड बन गया और वाई क्या बन गया, आपका पेरेंट। नाउ we will try to understand rotation with the help of example. Suppose that we want to rotations with the respect 9 के रेस्पेक्ट में मुझे लेफ्ट रोटेशन करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 9 पर यदि मैं लेफ्ट रोटेशन करूंगा, 9 यहीं से आपका लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही 9 आपका नीचे की तरफ आएगा तो 12 कहां चला जाएगा, आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, 9 की पोजीशन ले लेगा और जो 9 है वो 12 का आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। देखिए इस एग्जांपल में 12 आपका ऊपर गया और 12 ऊपर जाने के बाद 9 उसका क्या बन गया, लेफ्ट चाइल्ड। 12 ऊपर गया, 9 क्या बन गया, लेफ्ट चाइल्ड। इट इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंसर्ट ऑपरेशन इन रेड ब्लैक ट्री, बट टू अंडरस्टैंड द इंसर्ट ऑपरेशन इन रेड ब्लैक ट्री we should know about the structure of arbitrary. There are some notations will be used during the insert operation in red black tree. First, यदि आपने किसी नोड x को इंसर्ट किया, यदि आपने किसी नोड x को इंसर्ट किया, इंसर्ट नोड इज x, इंसर्ट x के जस्ट बराबर में वो कहलाएगा x सिबलिंग। जो जस्ट x के बराबर में होगा वो इट इज कॉल्ड x सिबलिंग। एक्स के पेरेंट को इंडिकेट करते हैं एक्स फादर। एक्स के फादर का जो सिबलिंग होगा इट इज कॉल्ड एक्स अंकल। एक्स का फादर का जो सिबलिंग होगा वो एक्स का क्या कहलाएगा, अंकल। एक्स का अंकल कह सकते हो या ये कह सकते हो कि फादर का सिबलिंग, दोनों नोटेशन से अंकल डिनोट होते हैं। जो इंसर्ट नोड क्या है, इंसर्ट नोड का देखोगे तो अंकल कहलाएगा और इंसर्ट नोड के पेरेंट का देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, सिबलिंग कहलाएगा। और ये जो इट इज कॉल्ड एक्स ग्रैंडफादर। एक्स नोड का ये फादर था तो ये क्या कहलाएंगे, एक्स के ग्रैंडफादर। तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन ग्रैंडफादर है, कौन सिबलिंग है एक्स का, कौन एक्स का अंकल है और कौन एक्स के फादर है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड insert operation in red black tree. During the insert operation in red black tree, if you want to insert a new element in red black tree, then every new node during the insert color contain the color red. मीन्स जब कोई नोड इंसर्ट होता है रेड ब्लैक ट्री में तो इंसर्ट होने के वक्त उसका कलर हमेशा क्या होगा, रेड होगा। क्लियर। अब रेड ब्लैक ट्री, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरेट होता है कि नोड इंसर्ट कहां होगा। तो मैं पहले ही आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, रेड ब्लैक ट्री आपकी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड रखता है। बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट वैल्यू आपकी लेस देन होती है पेरेंट नोड से, राइट वैल्यू ग्रेटर देन होती है आपकी पेरेंट नोड से। तो मींस हम पोजीशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे रेड ब्लैक ट्री में कि नोड कहां पर इंसर्ट होगा, वैल्यू इज लेस देन और ग्रेटर देन फ्रॉम द पेरेंट नोड। बट जब वो नोड इंसर्ट होगा, नोड ड्यूरिंग द इंसर्ट उसका कलर क्या होगा, यहां पर रेड। क्लियर। नोड इंसर्ट होने के बाद कुछ प्रॉपर्टी आपकी रेड ब्लैक ट्री की क्या हो सकती है, वायलेट हो सकती है। यदि आपके रेड ब्लैक ट्री की कुछ प्रॉपर्टी यदि वायलेट हो रही हैं तो हमको रेड ब्लैक ट्री पर ड्यूरिंग द इंसर्ट कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। वो ऑपरेशंस क्या है, वो रूल्स क्या है, इट इज कॉल्ड रेड ब्लैक ट्री फिक्सअप। देखिए अब वो ऑपरेशंस क्या है, सपोज दैट अब मैं इंसर्ट, अब देखिए मुझे कोई नोड रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करना है तो हम उसकी पोजीशन लेकर सपोज कर चलते हैं, केस बनाकर चलते हैं कहां कहां पर वो नोड इंसर्ट हो सकता है। सपोज दैट मैंने किसी नोड को इंसर्ट किया और ट्री अभी आपका एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो वो नोड कहां पर इंसर्ट होगा आपका, वो नोड इंसर्ट होगा रूट नोड पर। रूट नोड पर जैसे इंसर्ट होगा, सपोज दैट आई वांट टू इंसर्ट 4, मैंने 4 को इंसर्ट किया, इंसर्ट के वक्त
उसका कलर मैंने क्या बताया था, क्या होगा, जब भी किसी नोड को इंसर्ट करते हैं उसका कलर क्या होगा, रेड, कलर क्या होगा, रेड। बट फॉर हिज रूट नोड, और रूट नोड की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि रूट इज ऑलवेज ब्लैक, तो मीन्स आपका ड्यूरिंग द इंसर्ट नोड तो कलर आपका रेड होगा, बट रूट होने की वजह से उसका कलर चेंज होकर रेड से तुरंत क्या कर देंगे हम, ब्लैक। क्लियर। फर्स्ट पोजीशन इफ इंसर्टिंग नोड इज रूट, और यहां पर भी इसके नील पॉइंटर होंगे 4 के, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एवरी नोड कंटेन्स द नील पॉइंटर एंड नील पॉइंटर कलर इज ब्लैक। सेकंड, यदि जिस नोड को आप इंसर्ट करना चाहते हो वो कोई इंटरनल नोड है, क्लियर, यदि वो, अब जब तुमने इंसर्ट किया तो ड्यूरिंग द इंसर्ट उसका कलर क्या, रेड, तो हम चेक करते हैं उसके पेरेंट का कलर क्या है। पेरेंट का कलर यदि आपका ब्लैक है, पेरेंट का कलर यदि आपका ब्लैक है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्लैक का चाइल्ड, ब्लैक पेरेंट का चाइल्ड रेड हो सकता है और ब्लैक हाइट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड, यदि आप किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट करने के बाद यदि वो इंटरनल नोड है और हम चेक करेंगे उसका फिर से पेरेंट, यदि उसका पेरेंट क्या है, रेड है, मींस जो नोड इंसर्ट किया उसका भी नोड कलर रेड है, उसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड है। वी नो अबाउट रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टीज, यदि कोई नोड रेड है तो उसके दोनों चाइल्ड क्या होने चाहिए, ब्लैक, मींस यहां पर रेड नोड का चाइल्ड क्या हो रहा है, रेड। यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, इसी प्रॉब्लम को हमें फिक्सअप करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम कहलाती है डबल रेड कलर प्रॉब्लम, मींस पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम ऑपरेशन पढ़ते हैं कि जब हम किसी नोड को इंसर्ट करते हैं उसका कलर रेड है और उसके पेरेंट का भी कलर क्या है, रेड है, मींस प्रॉब्लम आ चुकी है। देखिए मैंने अब तक क्या डिस्कस किया ड्यूरिंग द इंसर्ट, यदि आप किसी नोड को इंसर्ट कर रहे हो, वो यदि रूट नोड है तो कोई नहीं, इंसर्ट करते वक्त उसका कलर रेड है, हम फाइनली उसका कलर चेंज करेंगे, रेड से क्या कर देंगे, ब्लैक। सेकंड केस, यदि आपने नोड को इंसर्ट किया और उसका कलर रेड है और वो कोई इंटरनल नोड है बट उसका पेरेंट ऑलरेडी कैसा है, ब्लैक, तो आपको कोई भी कलर चेंज करने की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी वायलेट नहीं हो रही। थर्ड केस, यदि आपने किसी नोड को इंसर्ट किया वो रेड है और उसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड है, तो प्रॉपर्टी यहां पर अब रेड ब्लैक ट्री की वायलेट हो गई है, क्योंकि रेड यदि कोई पेरेंट है तो उसका चाइल्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक। अब आप सिंपली कह सकते हो कोई बड़ा इशू नहीं है, कलर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, या तो पेरेंट का रेड से ब्लैक कर दीजिए या किसका चेंज कर दीजिए, जो आपने इंसर्ट किया ब्लैक। बट आपसे इससे इंपैक्ट क्या आएगा, इससे इंपैक्ट आएगा कि आपकी ब्लैक हाइट क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी। आपने एक तरफ तो ब्लैक नोट बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कोई आपने ब्लैक नोट बढ़ाया नहीं है, और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपका कोई भी नोट की यदि आप ब्लैक हाइट कैलकुलेट करते हो किसी भी पाथ पर, नंबर ऑफ ब्लैक नोट शुड बी सेम। क्लियर। तो मींस अब हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। यदि उसका पेरेंट रेड है तो अब आपके यहां पर प्रॉब्लम कैसी है, कैसे होगा इंसर्ट, ये डिसाइड करता है अंकल का कलर। मींस प्रॉब्लम आ चुकी है, ड्यूरिंग द इंसर्ट नोड का कलर रेड है, उसके पेरेंट का कलर रेड है। अब प्रॉब्लम मींस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है वो डिसाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अंकल कलर। क्लियर। इफ अंकल कलर इज रेड, अंकल मींस यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने एक्स को इंसर्ट किया है, क्लियर, एक्स का कलर क्या है, रेड, उसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड। अब मैंने देखा कि पेरेंट, तो यहां पर इट इज कॉल्ड डबल रेड कलर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अंकल कलर, एक्स के अंकल कह लीजिए, पेरेंट का सिबलिंग। पेरेंट के सिबलिंग के अब दो कलर होंगे, या तो वो रेड होगा या वो ब्लैक होगा। फर्स्ट केस, यदि पेरेंट का सिबलिंग आपका रेड है तो प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिंपली क्या करिए, रिकलरिंग कर दीजिए। रिकलरिंग का मतलब क्या है कि कलर चेंज कर दीजिए। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किस किस का कलर चेंज करना है, पेरेंट भी रेड है और पेरेंट का सिबलिंग भी रेड है, तो सिंपली पेरेंट के कलर को ब्लैक कर दीजिए, सिबलिंग के कलर को भी क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। अब जो ग्रैंडफादर है वो आपका ऑलरेडी ब्लैक होगा, उसका कलर भी ब्लैक से क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए। अब रेड के दोनों चाइल्ड हो सकते हैं। सपोज दैट अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि ग्रैंडफादर आपका रूट नोड है और आपने उसका कलर चेंज कर रेड कर दिया तो फिर क्या है,
आप उसका कलर रेड कीजिए और रूट नोड होने की वजह से वो कलर उसका तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मींस आप इस एग्जांपल से समझिए, पी और यू का कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, और ग्रैंड पेरेंट का कलर मैंने क्या कर दिया, रेड। यहां पर कोई पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी कि पेरेंट किधर था, चाइल्ड किधर था। सिंपल, जब अंकल का कलर रेड होता है तो उस केस में आप क्या करिए, सिंपली रिकलरिंग कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि आपका सपोज दैट आपने जो नोड इंसर्ट किया है उसका कलर रेड है, उसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड है, बट अब की बार अंकल का कलर क्या है, ब्लैक है। अंकल का कलर क्या है, ब्लैक है। यदि जब अंकल का कलर ब्लैक होता है तो प्रॉब्लम जरा सी बड़ी हो जाती है। उसमें अब ये डिपेंड करता है कि पेरेंट और चाइल्ड की पोजीशंस क्या है। पेरेंट और चाइल्ड की 4 पोजीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं, मींस पेरेंट लेफ्ट, चाइल्ड लेफ्ट, पेरेंट राइट, चाइल्ड राइट, पेरेंट लेफ्ट, चाइल्ड राइट, पेरेंट राइट, चाइल्ड लेफ्ट। मींस ये 4 पोजीशन आपकी मैटर करती हैं। ये पोजीशन कब मैटर करती हैं, जब आपके पेरेंट के सिबलिंग का कलर, मींस जो इंसर्ट नोड किया उसके अंकल का कलर ब्लैक है। उस ड्यूरिंग आप क्या करते हो, अब ये यहां से ध्यान से समझने वाली बात है। यदि आपकी सेम पोजीशन है, मींस LL और RR, मींस पेरेंट भी लेफ्ट में है और चाइल्ड भी लेफ्ट में, पेरेंट राइट में और चाइल्ड राइट में, उस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं रिकलरिंग। रिकलरिंग मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, अंकल तो ऑलरेडी ब्लैक है, उसको तो ब्लैक रहने दो। जो पेरेंट है, प्रॉब्लम तभी आई है जब पेरेंट का कलर रेड है, तो पेरेंट के कलर को क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। अंकल ऑलरेडी ब्लैक है, उसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। जो उनके ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट का कलर क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप आप रिकलरिंग करिए। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा रोटेशंस। अब यहां पर रोटेशंस लेफ्ट रोटेशन करना है या राइट रोटेशन करना है। यदि आपकी पोजीशंस LL है तो हमेशा आपको ग्रैंड पेरेंट पर राइट रोटेशन करना है। ग्रैंड पेरेंट पर कौन सा रोटेशन करना है, राइट। इस तरीके से समझिए, जो भी पोजीशंस है उसके जस्ट रिवर्स वाला रोटेशन करना है ऑन ग्रैंड पेरेंट। तो पेरेंट आपका लेफ्ट, चाइल्ड भी लेफ्ट, तो आप ग्रैंड पेरेंट पर कौन सा रोटेशन कर दोगे, राइट रोटेशन कर दोगे। क्लियर। तो यहां पर फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं। यदि सेम पोजीशन है, पोजीशंस कब मैटर करती हैं, जब आपने किसी नोड को इंसर्ट किया उसका कलर भी रेड है, उसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड है, बट उसके अंकल का कलर या ये कह लीजिए पेरेंट के सिबलिंग का कलर क्या है, ब्लैक है। उस केस में आपकी पोजीशंस मैटर करती हैं। आपकी 4 पोजीशंस बन सकती हैं, सेम पोजीशंस एंड डिफरेंट पोजीशंस। सेम पोजीशंस का मतलब पेरेंट लेफ्ट, चाइल्ड लेफ्ट, पेरेंट राइट, चाइल्ड राइट, पेरेंट लेफ्ट, चाइल्ड राइट, पेरेंट राइट, चाइल्ड लेफ्ट। यदि आपकी सेम पोजीशंस हैं तो सेम पोजीशंस में फर्स्ट रिकलरिंग करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट। रिकलरिंग का मतलब क्या है कि पेरेंट को आपको ब्लैक कर देना है, अंकल ऑलरेडी ब्लैक है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ग्रैंड पेरेंट को क्या कर देना, रेड कर देना। ये फर्स्ट स्टेप करना। सेकंड स्टेप आपको रोटेशंस करना है। यदि सेम पोजीशन है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो आपको राइट रोटेशन करना है ग्रैंड पेरेंट पर, और यदि राइट राइट पोजीशन है तो आपको ग्रैंड पेरेंट पर लेफ्ट रोटेशन करना है। क्लियर। RR पोजीशन, RR सेम पोजीशन है, मींस आपको फिर से रिकलरिंग करनी है। रिकलरिंग करने के बाद ग्रैंड पेरेंट पर आपको लेफ्ट रोटेशन करना है। नेक्स्ट, यदि आपकी पोजीशंस डिफरेंट है। अब पोजीशंस डिफरेंट है, पोजीशंस क्या हो सकती हैं आपकी डिफरेंट पोजीशन, LR, डिफरेंट पोजीशन क्या हो सकती है, RL एंड LR। मींस पेरेंट आपका राइट है और चाइल्ड क्या है आपका लेफ्ट। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि डिफरेंट पोजीशन है तो पहले उनको सेम पोजीशन में लाने की कोशिश करो, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। ये हम हमेशा जानते हैं, जनरल लाइफ में भी जानते हैं कि चाइल्ड किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, पेरेंट के अकॉर्डिंग। मींस यदि RL पोजीशन है तो इसका मतलब आप फर्स्ट राइट रोटेशन कीजिए पेरेंट पर। स्टेप फर्स्ट राइट रोटेशन करना है किस पर, पेरेंट पर, क्योंकि आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, पेरेंट के अकॉर्डिंग। पेरेंट देखिए यहां पर क्या है आपका राइट साइड है और चाइल्ड आपके कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट पेरेंट पर कौन सा रोटेशन कीजिए, राइट रोटेशन।
जब आप पेरेंट पर राइट रोटेशन करोगे, राइट रोटेशन के बाद पेरेंट और चाइल्ड आपके किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? आपके डायरेक्शन में आ जाएंगे आर आर आर। मींस आपका कौन सा केस बन गया? सेम पोजीशन वाला। क्लियर? सेम पोजीशन। अब यदि एल आर पोजिशन आपकी मींस पेरेंट लेफ्ट है और चाइल्ड क्या है? राइट। अब की बार पेरेंट पर कौन सा रोटेशन कीजिए? पेरेंट पर रोटेशन कीजिए लेफ्ट रोटेशन। आप जैसे ही लेफ्ट रोटेशन पेरेंट पर करोगे तो वो किस पोजीशन पर आ जाएगा? केस बन जाएगा एल एल और आर आर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यदि सेम केस है, सेम पोजीशन है, सॉरी सेम पोजीशन है, तो सेम पोजीशन पर फर्स्ट रिकलिंग करते हैं, और राइट राइट पोजीशन है तो आपके ग्रैंड पेरेंट पर क्या करते हैं? लेफ्ट रोटेशन करते हैं। और यदि आपकी डिफरेंट एल एल पोजीशन है तो रिकलिंग करेंगे और ग्रैंड पेरेंट पर राइट रोटेशन करेंगे। ये सिर्फ आपके आर्बिट्री के इंसर्ट्स के रूल है। एक बार मैं फिर से समरी कर देता हूं 2 मिनट में कि ड्यूरिंग द इंसर्ट ऑपरेशन हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। यदि आप किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हो, यदि वो रूट नोड है, तो रूट नोड है, इंसर्ट करते वक्त उसका कलर रेड होगा, बट रूट नोड होने की वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। सेकंड, यदि आप किसी नोड को इंसर्ट करते हो, वो कोई इंटरनल नोड है, उसका कलर रेड है, बट आप उसके पेरेंट का कलर चेक करते हो, यदि पेरेंट का कलर उसका ऑलरेडी ब्लैक है तो कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। थर्ड, आपने कोई नोड इंसर्ट किया, उसका तो कलर रेड है ही, बट अब की बार पेरेंट का कलर क्या है? रेड है। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ चुकी है, पेरेंट भी रेड है और चाइल्ड भी रेड है। इट इज कॉल्ड डबल रेड कलर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अंकल कलर। अंकल का कलर या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। यदि अंकल का कलर भी रेड है तो सिंपल क्या करिए? रिकलिंग कर दीजिए। अंकल को भी ब्लैक कर दीजिए, पेरेंट को भी ब्लैक कर दीजिए, और ग्रैंड पेरेंट को क्या कर दीजिए? रेड कर दीजिए। यदि ग्रैंड पेरेंट उस केस में रूट बनता है तो रेड से वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट केस, यदि आपने जिस नोड को इंसर्ट किया उसका कलर रेड है, पेरेंट ऑलरेडी रेड है, तभी प्रॉब्लम आई है, बट अब की बार अंकल का कलर ब्लैक है। यदि अंकल का कलर ब्लैक होता है तो उस केस में आपकी पोजीशंस मैटर करती हैं। यदि आपकी पोजीशंस मैटर करती हैं, पोजीशंस आपकी हो सकती हैं सेम पोजीशंस एंड डिफरेंट पोजीशंस। सेम पोजीशंस मींस एल एल आर आर एल आर आर एल। सेम पोजीशन मतलब पेरेंट भी लेफ्ट, चाइल्ड भी राइट, चाइल्ड भी पेरेंट भी राइट, चाइल्ड भी राइट, पेरेंट लेफ्ट, चाइल्ड राइट, पेरेंट राइट, चाइल्ड लेफ्ट। तो यदि आपकी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सेम पोजीशन के केस में आपको फर्स्ट रिकलिंग करनी है। रिकलिंग मींस पेरेंट के कलर को रेड कर दीजिए, अंकल तो ऑलरेडी ब्लैक है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसे ब्लैक ही रहने देना है। ग्रैंड पेरेंट को क्या कर देना? रेड कर देना। रिकलिंग के बाद यहां पर रोटेशन फंक्शन यूज होगा। यदि सेम पोजीशन एल एल है तो ग्रैंड पेरेंट पर आपका राइट रोटेशन होगा। जो भी आपकी पोजीशन है उसके जस्ट रिवर्स वाला होगा। लेफ्ट लेफ्ट है तो ग्रैंड पेरेंट पर राइट रोटेशन होगा। यदि आर आर है, आपकी राइट राइट पोजीशन है, तो ग्रैंड पेरेंट पर आपका लेफ्ट रोटेशन होगा। नेक्स्ट, यदि आपके पोजीशंस क्या है? डिफरेंट है। ड्यूरिंग द पोजीशन, यदि आपकी पोजीशन डिफरेंट है, एल आर आर एल मीन्स पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट, तो फर्स्ट आपको पेरेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड को लाना है। मीन्स पेरेंट पर आपको फर्स्ट रोटेशन कौन सा करना है? लेफ्ट रोटेशन करना है। पेरेंट पर जैसे ही लेफ्ट रोटेशन करोगे तो वो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा? एल एल। अब एल एल पोजीशन आते ही कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी कॉल हो जाएंगी? एल एल की। मीन्स रिकलिंग एंड एल एल, रिकलिंग एंड राइट रोटेशन ऑन ग्रैंड पेरेंट। यदि आपका आर एल है, आर एल पर क्या करोगे? पेरेंट पर राइट रोटेशन करोगे। पेरेंट पर राइट रोटेशन करते ही कौन सी पोजीशन आ जाएंगी? आर आर। जैसे आर आर आएंगी तो आर आर की प्रॉपर्टी मीन्स आर आर का केस क्या था? सेम है, तो मीन्स ग्रांड रिकलिंग करोगे। रिकलिंग करने के बाद ग्रांड पेरेंट पर आप जस्ट रिवर्स मीन्स आर आर पोजिशन है तो लेफ्ट रोटेशन आप ग्रांड पेरेंट पर कर दोगे। आई थिंक आपको रोटेशंस के केस क्लियर हो गए होंगे। अब इनको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट we want to insert in arbitrary 4 7 12 15 3 5 4. insert 4 अभी आपका रेड ब्लैक ट्री एमपीटी है, 4 आपका इंसर्ट होगा
कलर उसका रेड होगा, बट ये आपका रूट नोड है, रूट नोड होने की वजह से कलर उसका चेंज हो जाएगा और ये कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। और उसके दोनों लीफ आपके नील पॉइंटर ऑलरेडी आपके किस कलर के होंगे, ब्लैक। क्लियर, फर्स्ट केस आपको क्लियर होगा। सेकंड 7, इंसर्ट 7, 4 कलर इज ब्लैक। 7 बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड रखता है, 7 इज ग्रेटर देन फ्रॉम द 4, तो राइट डायरेक्शन में जाएगा। 7 राइट डायरेक्शन में गया, बट मैंने डिस्कस किया था यदि आपके ड्यूरिंग द इंसर्ट नोड का कलर हमेशा क्या होगा, रेड, तो आर का 7 का कलर क्या हो जाएगा, रेड। 4 का एक लीफ नोड ऑलरेडी था नील पॉइंटर। अब 7 आपका, अब देखिए उसका पेरेंट चेक करते हैं, 7 का पेरेंट यहां पर क्या है, ब्लैक, तो कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही, कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं है, तो 7 के दोनों नील पॉइंटर ब्लैक और रेड के दोनों चाइल्ड क्या हो गए, ब्लैक, सभी प्रॉपर्टी होल्ड है। नेक्स्ट इंसर्ट 12, इंसर्ट 12, 12 को इंसर्ट करोगे, 12 इंसर्ट होगा, 4 ब्लैक, ब्लैक, 7 रेड। 12 इंसर्ट होगा 7 के राइट, 7 के राइट में जब 12 को इंसर्ट करोगे और कलर क्या होगा उसका, रेड। यहां पर ऑलरेडी कलर इज ब्लैक, 12 के दोनों नील पॉइंटर ब्लैक। बट 12 जब तुमने इंसर्ट किया तो मैंने क्या कहा था, हमेशा किसको देखते हैं, पेरेंट को देखते हैं ड्यूरिंग द पेरेंट। अब यहां पर 7 का कलर क्या है, रेड। यदि 7 का कलर रेड है तो इट इज कॉल्ड डबल रेड कलर प्रॉब्लम। ये इशू हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड के दोनों चाइल्ड क्या होने चाहिए, ब्लैक। अब पोजीशंस, अब आपका कौन सा केस अप्लाई होगा, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अंकल कलर। मींस 12 का अंकल कौन है यहां पर, बी, एक नील पॉइंटर, या ये कह लीजिए, हाँ 12 का सिविल, हाँ पेरेंट, 12 का अंकल कौन है, ये नील पॉइंटर, उसका कलर यहां पर क्या है आपका, ब्लैक। मींस यदि अंकल का कलर ब्लैक है तो आपकी पोजीशंस मैटर करती हैं। अब ये देखिए पोजीशंस क्या क्या सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशंस है। आपने देखा पेरेंट क्या है 4 का, राइट, मींस पेरेंट राइट पोजीशन में है। 12 कौन सी पोजीशंस में है, राइट, 7 के राइट में, मींस केस है आर आर। सेम पोजीशन से मैंने कहा था कि सेम पोजीशन हो तो कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल रिकलिंग कीजिए। रिकलिंग मींस पेरेंट के कलर को क्या कर दीजिए, रेड से ब्लैक कर दीजिए, मैंने कर दिया। 7 के कलर को चेंज कर रेड से क्या कर दिया, ब्लैक। और ग्रांड पेरेंट के कलर को क्या कर दीजिए, ब्लैक से रेड। अब ये गलती मत करना अभी कि 4 आपका रूट नोड है तो तुरंत कलर क्या कर दीजिए, ब्लैक, क्योंकि अभी फंक्शन कॉल होना है कौन सा, रोटेशंस। क्लियर, मैंने कहा था यदि सेम पोजीशन है तो आप जो भी पोजीशन है जस्ट उसका रिवर्स, तो इसका मतलब लेफ्ट रोटेशन लगना किस पर, ग्रांड पेरेंट पर। और ग्रांड पेरेंट यहां पर क्या है आपका 4, तो 4 पर आपका कौन सा रोटेशन लग जाएगा, लेफ्ट रोटेशन। 4 पर जैसे ही आप लेफ्ट रोटेशन करोगे फाइनली आपका ट्री बन जाएगा। फाइनली अब 4 पर आप लेफ्ट रोटेशन करोगे तो 7 आपका ऊपर आ जाएगा, 7 आपका ऊपर आएगा, कलर इज ब्लैक, एंड 4 आपका इधर आ जाएगा, कलर इज रेड, एंड 12 इज इस साइड, कलर इज रेड, एंड नील पॉइंटर ब्लैक 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 ब्लैक। आई थिंक आपको 12 समझ में आ गया कि सेम पोजीशंस थी तो पहले रिकलिंग की, रिकलिंग के बाद उस पर ग्रांड पेरेंट पर जस्ट रिवर्स, मतलब राइट राइट से लेफ्ट रोटेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट वी वांट टू इंसर्ट 15, मींस आपका ट्री बना था, अब तक जो ट्री बना आपका, अब तक आपका जो फाइनली ट्री बना है, 7 इज ब्लैक, 4 इज रेड, एंड 12 इज रेड, बोथ चाइल्ड इज ब्लैक, नील पॉइंटर। Then you want to insert 15. Insert 15.
इंसर्ट 15 इंसर्ट होगा आपके 12 के राइट में। 15 को मैंने यहां पर इंसर्ट किया, यहां पर 15 इंसर्ट होगा। ड्यूरिंग द 15 आपका इसका कलर चेंज होगा, मीन्स रेड था, ड्यूरिंग द 15 आपका क्या हो जाएगा, रेड, और रेड के दोनों चाइल्ड आपके क्या हो जाएंगे, रेड के दोनों चाइल्ड आपके ब्लैक। मीन्स फिर ध्यान से देखिए, 15 रेड है और 12 भी क्या है, रेड है, मीन्स डबल रेड कलर प्रॉब्लम आ चुकी है। अब प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अंकल कलर। अंकल का कलर यहां पर 15 के अंकल का कलर क्या है, रेड। यदि अंकल का कलर रेड होता है तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। सिंपल क्या करिए, रिकलरिंग कीजिए, मीन्स अंकल के कलर को क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, पेरेंट के कलर को भी क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, ग्रांड पेरेंट के कलर को भी क्या कर दीजिए, रेड। बट ग्रांड पेरेंट तो यहां पर अब की बार क्या है, रूट है। यदि ग्रांड पेरेंट आपका रूट है तो तुरंत उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से फिर से क्या हो जाएगा, ब्लैक। मीन्स फाइनली यदि मैं बात करता हूं तो आपका ट्री हो जाएगा ये। मीन्स अब सभी प्रॉपर्टी होल्ड है। क्लियर? आफ्टर इंसर्टिंग द 15। अब यदि आप किसको इंसर्ट करना चाहते हो, 3, इंसर्ट 3, इंसर्ट 3 एंड insert 3 and 5, insert 3 and 5। 3 को इंसर्ट करेंगे 4 के लेफ्ट में, 4 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा कलर 3, पर 3 का कलर क्या होगा, रेड। 3 का कलर जैसे ही रेड होगा, मींस रेड, हम 3 के पेरेंट को देखेंगे, 3 का पेरेंट ऑलरेडी कैसा है, ब्लैक है। तो यदि किसी नोड का पेरेंट ऑलरेडी ब्लैक है तो कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है, तो 3 आपका सिंपल इंसर्ट हो जाएगा। देन हम 5 को इंसर्ट करना चाहते हैं, 5 कहां पर इंसर्ट होगा, 4 के राइट में। यहां पर मैंने 5 को इंसर्ट किया, 5 राइट में इंसर्ट हुआ। 5 का कलर भी कैसा है, रेड है। क्लियर? 5 का कलर रेड है, बट उसके पेरेंट का कलर ऑलरेडी कैसा है, ब्लैक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। मींस ड्यूरिंग द 3 एंड 5 कोई भी प्रॉपर्टी आपकी वायलेट नहीं हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं देखता हूं तो फाइनली ट्री अब तक आपका क्या बन चुका है, फाइनल ट्री बन चुका है आपका 7 इज ब्लैक, 4 इज ब्लैक एंड 12 इज ब्लैक एंड 3 इज रेड एंड 5 इज रेड, 15 इज रेड, ये लीफ नोड ब्लैक एंड लीफ नोड ब्लैक ब्लैक। यहां पर भी लीफ नोड आपके ब्लैक 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 ब्लैक। क्लियर? अब हम इंसर्ट करना चाहते हैं, अब हम इंसर्ट करना चाहते हैं 14 को। यदि हम 14 को इंसर्ट करना चाहते हैं, ये हमें क्लियर है कि 14 किधर इंसर्ट होगा, 14 इंसर्ट होगा आपके 15 के लेफ्ट में। 15 के लेफ्ट में जैसे ही मैंने 14 को इंसर्ट किया, 14 को इंसर्ट किया, 14 का कलर क्या है, रेड। 14 का कलर क्या, रेड। तो यहां पर भी रेड, यहां पर भी रेड, मींस आपकी प्रॉब्लम आ चुकी है, इट इज कॉल्ड डबल रेड कलर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी, ये डिसाइड करता है उसका अंकल। अब आर भी रेड, पेरेंट भी रेड, और पेरेंट का यहां पर सिबलिंग कौन है, आपका ये नील पॉइंटर, और उसका कलर क्या, ब्लैक। मींस अंकल का कलर यहां पर ब्लैक है। तो इसका मतलब पोजीशंस मैटर करेंगी। पोजीशंस बस उस केस में मैटर नहीं करती जब अंकल का कलर क्या होता है, रेड। अब यहां पर यदि पोजीशंस आपके मैटर करेंगे तो हमें देखना कि पोजीशंस कैसी हैं। पोजीशंस कैसी हैं, पेरेंट आपका राइट डायरेक्शन में है, आर, और चाइल्ड आपका कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। मींस ये जरा सा बड़ा केस है कि पेरेंट राइट और चाइल्ड लेफ्ट, मींस डिफरेंट पोजीशंस। यदि डिफरेंट पोजीशंस हैं तो मुझे उन्हें पहले किस में लाना होगा, सेम पोजीशंस। सेम पोजीशंस का मतलब आर आर पोजीशंस। आर आर पोजीशंस के लिए मुझे फर्स्ट पेरेंट पर, आपके पेरेंट कौन सा थे यहां पर, 15 पर, 15 पर कौन सा रोटेशन करना होगा, 15 पर मुझे करना होगा यहां पर राइट रोटेशन,
क्योंकि RL है तो पेरेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, पेरेंट राइट में है तो पेरेंट पर कौन सा रोटेशन होगा, राइट रोटेशन। राइट रोटेशन के बाद वो किस पोजीशन पर आ जाएगा, RR पर। तो इसके लिए मीन्स मुझे करना है अब आपका राइट रोटेशन ऑन 15 पर यदि मैं राइट रोटेशन करूंगा, 7 आपका ऑलरेडी ट्री यहां पर ब्लैक, 7 ऑलरेडी आपका ब्लैक है, 4 आपका ऑलरेडी ब्लैक है, 3 एंड 5 ऑलरेडी रेड है, उनके साथ मुझे कुछ नहीं करना। मीन्स 12 ऑलरेडी ब्लैक है, कुछ नहीं करना। मीन्स अब 15 पर मैं राइट रोटेशन करूंगा तो 15 आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, 14 आपका ऊपर, 14 ऊपर आया आपका, 14 ऊपर आने के बाद आपका ब्लैक है ही ऑलरेडी, और सॉरी 14 आपका रेड, 14 आपका कलर है रेड, 14 ऊपर आया, 15 आपका जस्ट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका कलर क्या है, रेड। अब ये आपके किस में आ गए, सेम पोजीशंस, किस पोजीशंस में आ गए, सेम पोजीशन। सेम पोजीशंस मींस RR। RR के बाद मैंने कहा था कि आपको सिंपल क्या करना है, रिकलरिंग करनी है, और जो भी पोजीशन है जस्ट उसका रिवर्स मारना है ग्रैंड पेरेंट पर। अब कर देते हैं, पहले रिकलरिंग कर देते हैं। पेरेंट का कलर यहां पर चेंज करिए, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अंकल ऑलरेडी यहां पर क्या है, ब्लैक है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड पेरेंट क्या हो जाएगा अब आपका, ब्लैक से रेड हो जाएगा, ब्लैक से रेड हो गया, ये इट इज कॉल्ड रिकलरिंग। अब यदि RR पोजीशन है तो देन आपका नेक्स्ट रोटेशन लगेगा ग्रैंड पेरेंट पर, ग्रैंड पेरेंट पर रोटेशन लगेगा लेफ्ट रोटेशन, क्योंकि RR पोजीशन है तो RR पोजीशन में मैंने कहा था कि डिफरेंट रोटेशन। अब आप 7 पर रोटेशंस कर दीजिए, सॉरी 12 पर रोटेशंस कर दीजिए लेफ्ट रोटेशन। जैसे 7 पर लेफ्ट रोटेशन करोगे, 7 इज ब्लैक, 4 इज ब्लैक, 3 एंड 5 इज रेड, रेड। 12 पर आपने रोटेशंस किया तो मीन्स आपका 14 ऊपर गया, 14 का कलर आपका ब्लैक है, एंड 12 का कलर आपका रेड, एंड 15 का कलर आपका रेड, और दोनों लीफ नोड इनके भी ब्लैक ब्लैक, यहां पर भी ब्लैक ब्लैक, यहां पर भी ब्लैक ब्लैक। देन फाइनली आपके ऑल एलिमेंट्स आपके इंसर्ट हो चुके हैं। आप देखोगे कि 7 की ब्लैक हाइट यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस पास से भी देख लीजिए, 1 1 1 4 का कलर ब्लैक है, 1 एंड 1 2 1 एंड 1 2 1 2 2, किसी भी पास से इससे देख लीजिए 1 एंड 1 2, किसी भी पास से देख लीजिए रूट नोड की ब्लैक हाइट क्या आपकी सेम है। किसी भी नोड की कंसीडर कर लीजिए, ब्लैक हाइट आपकी हर नोड से क्या होगी, सेम होगी। और आपके यदि यहाँ पर 12 रेड है तो उसके दोनों चाइल्ड नील पॉइंटर क्या है, ब्लैक है। 15 आपका रेड है तो दोनों चाइल्ड इसके क्या है, ब्लैक है, नील पॉइंटर। 3 भी रेड है, दोनों चाइल्ड ब्लैक। 5 आपका रेड, दोनों चाइल्ड ब्लैक। थैंक यू वेरी मच।